Thank you, Vikas, and good to be back with my dear Anand. Anand, welcome to the commentary, and the match lineup that we have here is Nilesh Babu Gaikwad from Maharashtra, a top-seeded player, and he will be taking on the Tamil Nadu's Karthick Krishnan in the SL4 category of Khelo India Para Badminton tournaments that have begun today here in Delhi. We are coming to you live from Indira Gandhi Indoor Arena, and as players warm up on court number 1 that you see, it's good to be with you, Anand. Thank you. और जो पीली पोशाक में हैं वो हैं तमिलनाडु के कार्तिक कृष्णन तमिलनाडु के पीली पोशाक में, और महाराष्ट्र के हैं नीलेश बाबू गायकवाड़ लाल जर्सी में। और ये मुकाबला है SL4 प्री क्वार्टर फाइनल। हमने देखा कि SL3 में टॉप सीड प्लेयर नेहल ने बहुत आसानी से वो मुकाबला जीता था प्रशांत कुमार सिन्हा के खिलाफ झारखंड के, और यहाँ नीलेश बाबू गायकवाड़ टॉप सीड है और उनका सामना होना है तमिलनाडु के कार्तिक कृष्णन से। और ये हैं SL4 में टॉप सीडेड नीलेश बाबू गायकवाड़, महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। In red jersey, Nilesh Babu Gaikwad. Mind you, he's a southpaw, left-handed. Usually they have a nice swing of the arms and good with their smashes. Whereas Karthik Krishnan is right-handed there. It will be interesting to see how these two players take on this beautiful contest that we have begun today as the inaugural edition of Para Games in the Khelo India section. And what a tremendous brainchild of our Honorable Minister this thing has turned out to be, Khelo India, when it comes to Khelo India Youth Games or University Games, and now these Para Games. The kind of talent that it taps into in every nook and corner of the country, Anand, is absolutely mind-blowing. जी बिल्कुल, 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में प्रतिभाएं हर घर में मौजूद हैं, और ज़रूरत है तो उन प्रतिभाओं को तराश कर एक बेहतर मंच प्रदान करने की, और वही खेलो इंडिया ने कर दिखाया है, चाहे वो यूथ गेम्स के स्तर पर हो या यूनिवर्सिटी गेम्स के स्तर पर हो। हमने देखा है कि कई ऐसे चैंपियंस खिलाड़ी निकले हैं जो यूनिवर्सिटी गेम के लेवल पर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, मीट रिकॉर्ड बनाया है, साथ ही साथ एशियन गेम्स में जाकर पदक जीता है। कमाल का प्रदर्शन, और इन सब के पीछे जो मेहनत है खिलाड़ियों के साथ साथ उनके परिवार की, कोचेस की, सरकार के एफर्ट्स की। मुकाबला शुरू हो रहा है यहाँ पर तमिलनाडु बनाम महाराष्ट्र के नीलेश बाबू की सर्विस। Will be a little shady as he lost his serve quite early in the match. Mind you, he is the top-seeded player, Nilesh Balu Gaikwad from Maharashtra, as he takes on Karthik Krishnan from Tamil Nadu. Service over. 1, 2. Karthik Krishnan leads the match by 2-0. Now he conceded 1 point to Nilesh Balu Gaikwad. And 2. the unforced error from the Maharashtra player levels the score. 3. All. Service over. 4, 3. Oh, the Tamil Nadu player Karthik being a little too soft here as
Nilesh adds one more point to his kitty and leads the game by 5-3. Nice backhand return, but falls outside the sidelines, and that gives one more point to Karthik Krishnan. Service over. 6, 4. नीलेश बालू बढ़त पर हैं इस समय, और इस बार बिल्कुल नो शॉट था, ये किल शॉट खेला अपने ही कोर्ट में, और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। बहुत जल्दी जब आप खेलने की हड़बड़ाहट दिखाते हैं, जल्दीबाजी दिखाते हैं, तो इस ढंग के ही परिणाम सामने आते हैं। 7-4 की बढ़त पर चले गए हैं नीलेश। जो उम्मीद थी कि टॉप सीड हैं, बहुत एक तरफा अंदाज में मैच चलेगा, वैसा अब तक होता दिख नहीं रहा है। और इस बार ज्यादा शक्ति प्रदान की शॉट में वहां पर कार्तिक ने, और जिसका खामियाजा एक और अंक गंवाया। एक और खराब शॉट, लिफ्ट करना चाहते थे नेट के पास से, लेकिन एलिवेशन नहीं। एक के बाद एक लगातार 3 अनफोर्स्ड एरर आते हुए कार्तिक की तरफ से। Karthik Krishnan is just not getting his game right here. Something is drastically wrong as he lets go. Oh, that was a little cheeky on that occasion. You see, the Maharashtra lad had no chance whatsoever. Nilesh Balu Gaikwad on that occasion, bringing smile on Karthik Krishnan's face. और मिड गेम ब्रेक बहुत जल्दी आ गया इस मुकाबले में। 11-5 पर मिड गेम ब्रेक पर चले गए हैं नीलेश बालू। बहुत प्रभावशाली खेल दिखाया है इस पहले गेम के शुरुआती दौर में। जैसे ही देखा कि थोड़े से पीछे रहते हैं, वहां पर कार्तिक फ्रंट कोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉप शॉट खेलते हैं, हल्के हाथों से डेलिकेट टच करते हैं। दूसरी तरफ अगर कार्तिक कृष्णन की बात करें तो हड़बड़ाहट में ज्यादा शॉट खेल रहे हैं, जिस कारण अनफोर्स्ड एरर देखने को मिल रहे हैं उनकी तरफ से। Absolutely, Anand, as the players come back on court after that mid-game break. Nilesh Balu leads it by 11-5. Good smash there on that occasion. Karthik Krishnan from Tamil Nadu will be happy with this smash because that will give him a big morale boost here as he lags by 6 points here. But 7 back-to-back 2 points for Karthik Krishnan. Is that the moment? Nice decent serve. That's it, and it's called in. One more point for Karthik. अनफोर्स्ड एरर किया, एंगल चेंज करना चाहते थे, लेकिन साइडलाइन से बाहर नीलेश बालू को लगातार दूसरा अंक मिलता हुआ। साइडलाइन से बाहर एक और अनफोर्स्ड एरर किया और एक और अंक, लगातार 3 अंक हासिल करने में कामयाब हो गए नीलेश बालू। अच्छी रैली थी, लेकिन अंत में अनफोर्स्ड एरर के साथ समाप्त हुई। 15-7 एक और अंक बीच में हासिल कर लिया। 15-7 Nilesh Balu Gaikwad from Maharashtra leads and readies to serve, waiting for the chair umpire's signal. It seems to be a bit of a, there you go. Really unfortunate there. He made him, Karthik Krishnan literally made Nilesh Balu run around the corner in the complete court. He did well covering every corner of the court, but lastly he wasn't quick enough to there to return it. और इस बार रीच के बाहर प्लेस किया नीलेश बालू ने। पिछले कुछ समय में कोर्ट कवरेज पूरी तरीके से कोर्ट के हर एक कॉर्नर पर प्लेस करने में कामयाबी मिली थी कार्तिक कृष्णन को, लेकिन इस बार चूक गए।
खूबसूरत प्लेसमेंट। देख लिया था कि लेफ्ट साइड के कोर्ट में है, राइट साइड बिल्कुल खाली था, वहां पर एक बढ़िया प्लेसमेंट कर एक अंक हासिल कर लिया नीलेश ने। एक और ड्रॉप शॉट, इस बार डाउन द बेस लाइन से। मिड कोर्ट पर खड़े थे कार्तिक, फ्रंट कोर्ट बिल्कुल खाली था और वहां पर नजाकत भरा ये ड्रॉप शॉट। And look at that for angle also, Anand, beautifully placed. Understanding Karthik's position that he was a little too deep in the court. Nice smash. We'll have to wait. Yes, it's called in. And Nilesh Balu, lovely smash. Beautifully placed away from Karthik. Service over. 10. 1 point for Karthik as he gets back the serve. Oh, that's cheeky. That's very clever. I think it was a little too complacent, Nilesh Balu, on that occasion. He was a little too complacent. Stayed back there without realizing that Karthik Krishna is going to challenge him with a soft drop around the net. And he ends one more point. But Nilesh Balu is at the game point. Good toss. There you go. He wins the game comfortably. Nilesh Balu, Maharashtra top-seeded player he is, and having no trouble whatsoever winning this game. बहुत आसानी से, बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी चुनौती के नीलेश बालू ने इस पहले गेम में 21-11 से जीत दर्ज की है। कार्तिक कृष्णन ने पैचेस में थोड़ा बहुत प्रभावित जरूर किया, कुछ एक शॉट अपने तरकश से ऐसे निकाल कर खेल देते हैं जैसे लगता है कि क्या कमाल के खिलाड़ी हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी का अभाव नजर आया इस पूरे गेम में। एक बार दोबारा पहले गेम के हाइलाइट्स पर नजर डाल लें। देखिए बॉडी लाइन रिटर्न था, कुछ अच्छे स्मैश देखने को मिले, अच्छे प्लेसमेंट देखने को मिले, ड्रॉप शॉट पर ज्यादा कंट्रोल नीलेश का देखने को मिला और चेंज ऑफ एंगल के साथ जब शॉट खेला वहां पर कार्तिक कृष्णन ने, वहां पर चौंकाया कुछ एक अवसरों पर उन्होंने नीलेश को, और कुछ एक मौकों पर कोर्ट पर पूरी तरीके से हर एक कॉर्नर पर भगाया उन्हें। और तारीफ करनी पड़ेगी नीलेश की भी, उन्होंने लगभग हर एक शॉट का जवाब दिया, चाहे वो फ्रंट कोर्ट हो, बैक कोर्ट हो, बेस लाइन के पास हो। Absolutely, Anand. I think it was a good contest, even though it doesn't look that well fought a contest with the score of 11-21. But it was a very well fought first game of this amazing match that we have lined up in the SL4 category of the round of 16 here in men's category. And Nilesh Balu Gaikwad serves again. Couldn't come back quickly enough, and he'll have to lose his serve and cede a point to Karthik Krishnan from Tamil Nadu. Little unlucky there. Smile on Karthik's face. He knew that it was a hand of God. Called in by the side referee. Service over 2-1. It was a good cross-court smash, but falling out on the sidelines. Nilesh Balu will be disappointed. He positioned himself correctly there. He was there. The space was there, but the angle was a little too sharp. Had it been a little center. Oh, Balu again tapping his head with his racket. Disappointed with him as Karthik comfortably sits with 4.21 in the second game. See, a little aggressive there. और इस बार बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर प्लेसमेंट। एक अंक मिल जाएगा नीलेश बालू को। थोड़ा सा यहाँ पर हड़बड़ी में 2-3 शॉट खेल बैठे नीलेश और अंक गवा दिया। और बढ़िया यहाँ पर जजमेंट कार्तिक कृष्णन का आता हुआ डाउन द बेस लाइन पर। I was about to say that Karthik is looking much better in this game, and that's when he loses one more point here as Nilesh Balu moves up in the ladder with 3 points, lagging only 2 points from Karthik Krishnan. एक और बढ़िया अंक हासिल किया, स्ट्रेच करवाया था वहां पर
और जिसका कोई जवाब नहीं ढूंढ पाए। काफी दूर खेला था उनके शरीर से और ये अच्छी रणनीति, लेकिन इस बार गलती कर बैठे और इस गलती का फायदा क्या नीलेश बालू उठाएंगे? एक अंक तो मिल ही गया है। Excellent serve that was, but unfortunately he couldn't cross the net with a backhand return there. Nilesh Balu as Karthik serves. Good defending by Karthik Krishnan and made him do that mistake. That was an unforced error, actually architected by the Tamil Nadu player. रैकेट के फेस को बहुत जल्दी क्लोज कर दे रहे हैं और थोड़ा सा टाइम लेकर, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अगर थोड़ा लेट शॉट खेलें तो ज्यादा प्रभावी साबित हो सकते हैं। नीलेश बालू थोड़ा सा हड़बड़ी में शॉट खेल रहे हैं, रैकेट के फेस को क्लोज कर रहे हैं जिससे कि एलिवेशन नहीं मिल पा रहा है और थोड़े से उलझ रहे हैं। और इस बार कोई गलती नहीं की, बिल्कुल साइड लाइन के पास से बैकहैंड ड्रॉप शॉट, कमाल का शॉट था और जिसका कोई जवाब नहीं यहां पर देखने को मिला। I really like the angle here. He was very confident, very beautifully placed, and he didn't even try to change his position because he knew that he's getting it right no matter what. एक और ड्रॉप और उसके बाद नेट पर हल्के हाथों से डेलिकेट टच और आंसर देने के लिए गए जरूर थे, रिटर्न करने के लिए गए वहां पर कार्तिक कृष्णन, लेकिन नेट के इतने ज्यादा करीब की लिफ्ट करना आसान नहीं था। और इस बार जंपिंग स्मैश खेलना चाहते थे, एलिवेशन एक दफा फिर नहीं हासिल कर पाए और अब मिड गेम ब्रेक के करीब पहुंचते हुए कार्तिक कृष्णन। एक और खराब शॉट, एक और अनफोर्स्ड एरर और 11-7 दूसरे गेम में मिड गेम ब्रेक पर चले गए हैं कार्तिक कृष्णन। सारी संभावनाओं को यहां पर उलटते हुए शीर्ष वरीयता प्राप्त है नीलेश बालू गायकवाड़ महाराष्ट्र के इस कैटेगरी में, SL4 कैटेगरी में। लेकिन थोड़ा सा चौंकाया है कार्तिक कृष्णन ने, खास तौर पर दूसरे गेम में। पहला गेम वो हार गए थे, लेकिन दूसरे गेम में थोड़ी सी रवानगी, थोड़ी सी चुस्ती फुर्ती और थोड़ा सा बढ़िया एंटिसिपेशन नजर आ रहा है उनकी तरफ से। Oh, absolutely, Anand. I think the most interesting part of this second game has been the mindset, the positivity that Karthik Krishnan has been able to exude in spite of the fact that he lost that first game quite lopsidedly. But he's come back with a very positive outlook, and that has shown in the first half of the second game. Hopefully, he will carry on the momentum as he leads the second game. Service over 8. Nilesh Balu earning point, breaking the serve there. See, he's making Krishna make those mistakes, hitting those haphazard returns on the outside of sidelines. I like the way Balu serves. I really like very soft touch, very subtle, very difficult to predict. You know, can't really anticipate his serve. Very interesting. और एक के बाद एक कई गलतियां, लेकिन उसके बाद एक अंक मिलता हुआ यहां पर कार्तिक कृष्णन को। और अब गलतियों का सिलसिला नीलेश बालू की तरफ से आता हुआ, अनफोर्स्ड एरर की झड़ी लग गई है मिड गेम ब्रेक के बाद। और बहुत ज्यादा नाखुश होंगे, संभवतः साइड लाइन से बाहर शटल जा रही थी, उसको खेलने का इरादा बनाया, जंपिंग स्मैश करना चाहते थे, लेकिन बहुत ज्यादा फेस क्लोज किया रैकेट का और अपने ही जाल में फंस गए। लेकिन इस बार अंक हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे नीलेश। फासला अब घटकर हो गया है दोनों खिलाड़ियों के बीच अंकों का 3। As Balu realized that every time you don't have to put that much force. क्या कमाल का ड्रॉप है, लगभग डाइव करके पहुंचने की कोशिश की थी नीलेश बालू ने, लेकिन उसके बावजूद सफलता नहीं मिली। बहुत उम्दा प्रदर्शन कार्तिक कृष्णन का। बॉडी लैंग्वेज सेम, 11. Karthik still leading. 17-11 in the second game here. Karthik Krishnan
I'm really liking the positive mindset I have been talking about. Karthik Krishnan from Tamil Nadu, after having lost the first game, he is sitting comfortably in the second game with 18 points, leading to 11 of Nilesh Balu. और एक अंक मिलता हुआ यहाँ पर नीलेश बालू को। नीलेश नहीं चाहेंगे कि ये गेम जो है इतनी आसानी से कार्तिक कृष्णन जीत जाएं। क्या यहाँ एक उलटफेर होने वाला है? शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं नीलेश, लेकिन इस बार बेहतरीन प्लेसमेंट, कोई जवाब नहीं था कार्तिक कृष्णन के पास। अब भी 5 अंक का फासला है और 3 अंक ही दूर हैं कार्तिक इस गेम को जीतने में। एक और अनफोर्स्ड एरर। Karthik Krishnan holding on to his nerves and making Balu do these mistakes. These unforced errors are going to hurt him a lot. Nilesh Balu Gaikwad. इस बार बेहतरीन बॉडी लाइन रिटर्न आता हुआ नीलेश बालू का। कोई जवाब नहीं था, अपने आप को शटल की लाइन से अलग नहीं कर पाए, जगह नहीं बना पाए रिटर्न के लिए। Okay, no problem. Out break. Out break. 19. Out break. As Nilesh Balu earns one more point, decreasing the margin of points between him and Karthik. वाइड करार दी गई है, यानी अंकों का फासला 3 रह गया। क्या यहां पर कमबैक कर रहे हैं नीलेश? जी हां, एक और अंक। इस बार एंगल चेंज किया और बढ़िया प्लेसमेंट दिखाई। कोर्ट के दूसरे हिस्से में खड़े थे और वहां से जो प्लेसमेंट आई, फिर कोई जवाब नहीं था। 17-19 की सर्विस होगी नीलेश बालू की। क्या दूसरा गेम निर्णायक साबित होने वाला है नीलेश के नजरिए से? Looks like Nilesh Balu is inching towards that margin, only 1 point away. And as he levels the score at 19-19, as my colleague rightly pointed out, is this going to be the deciding factor here? Mind you, Nilesh Balu, champion player, has already won one game, but he makes an unforced error here, smashes that shuttle right in his side of court in the net, and that gives a little one game point to Karthik. एक और अनफोर्स्ड एरर। क्रंच मोमेंट पर 2 अनफोर्स्ड एरर आए नीलेश बालू की तरफ से और 21-19 से तमिलनाडु के कार्तिक कृष्णन ने इस दूसरे गेम को जीतकर इस मुकाबले को तीसरे गेम तक ले जाने में सफलता हासिल की है। उतार चढ़ाव भरा मुकाबला रहा इस दूसरे गेम में। पहले कार्तिक कृष्णन एक तरफा अंदाज में आगे जा रहे थे, फिर नीलेश बालू ने वापसी की। एक समय 19-19 पर ले गए, ऐसा लगा कि शायद यहीं फिनिश कर देंगे, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक 2 अनफोर्स्ड एरर। There you go, having a look at the second game highlights. Well, one has to say my heart goes out to Karthik. He kept his nerves. He came back with a positive mindset after having lost the first game, and he deserved to win this game. He really put in the hard work. He did not lose his cool even when the champion was closing in, inching in towards the margin and leveling the score at 19. But once he got the break at 20, he did not let that game slip out of his hand. गलतियां करवाई वहां पर नीलेश बालू से, और नीलेश बालू थोड़े से जरूर निराश होंगे जिस ढंग से मोमेंटम गंवाया और उसके बाद जो रिदम पकड़ी थी, क्रंच मोमेंट पर बिखर से गए। And as we get ready for the third and final game of this match between Maharashtra and Karnataka. Out. Good judge. Well played. और पहला अंक यहां पर नीलेश बालू के खाते में जाता हुआ तीसरे गेम में। Good sir. Keep it. एक और अनफोर्स्ड एरर आता हुआ कार्तिक कृष्णन की तरफ से। एक और ड्रॉप शॉट खेलना चाहते थे मिड कोर्ट से, लेकिन सफलता नहीं मिली और ये पूरे गेम की कहानी रही है। नीलेश बालू अपने शॉट को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं सही अंदाज में। Yes, he will be very disappointed with that cross-court drop he was trying.
It's a very difficult shot to attempt. He's a left-handed player, very good with these things. Usually these lefty southpaws are, but on that occasion. Well placed, Chal. Nicely placed, beautifully done as the champion players anticipated well. Great improvisation on part of Nilesh Balu there. He knew that he's drawn Karthik towards the net and there is an empty space. Good drop. Once again making use of that empty space there, Anand. और ऐसा लग रहा है कि पिछले 3-4 मिनट में अपने पूरे रंग में खेल रहे हैं नीलेश बालू. एक और अनफोर्स्ड एरर. बेस लाइन से बहुत ज्यादा पीछे शटल गिरी और बढ़त हो गई है 6 की. लेकिन इस बार एक और डाइव देखने को मिला. दूसरे गेम में भी डाइव करके लिफ्ट करना चाहते थे, सफलता नहीं मिली. और इस सिलसिले में देखिए पूरी तरीके से कोई फायदा नहीं. Very tricky shot on part of Karthik. Very smartly done by until the last moment. And these mistakes are going to hurt a lot to Nilesh Balu as Karthik accumulates one more point. He's still behind by 3-6, but he serves. Good drop. Unfortunately couldn't hold on to his serve. Tries a cheeky drop around the net, but unfortunately loses it. And one more point to Balu. आसान नहीं होता है लंच करके लिफ्ट करना. और एक और खराब शॉट. हड़बड़ी में खेला गया ये शॉट. और जब आप इस ढंग से जल्दीबाजी में शॉट खेलते हैं, जो कनेक्शन होता है वो फोर्सफुली होता है. बहुत बढ़िया प्लेसमेंट. हल्के हाथों से देख लिया था कि लगभग बेस लाइन की पोजीशन में हैं और मिड कोर्ट पर प्लेस कर दिया. एक और बढ़िया प्लेसमेंट, खूबसूरत प्लेसमेंट. और इसी खेल को एग्जीक्यूट करने की कोशिश लगातार करते हैं और कुछ एक अवसरों पर नेट में उलझा देते हैं. लेकिन बैक टू बैक 2 अंक. It's almost like the replay of the second game that I was watching when he won those consecutive points back to back. But on that occasion, Karthik scoring and making him do another unforced error here. Balu will be unhappy. Karthik is all smiles. Change of rackets perhaps by these two players. मिड गेम ब्रेक 11-4. नीलेश बालू ने तीसरे और निर्णायक गेम में शुरुआत से ही जो बढ़त बनाए रखी है उसको बरकरार रखने में सफल. और कार्तिक कृष्णन थोड़े से एक बार फिर ऑफ कलर नजर आ रहे हैं. बड़ी में शॉट जो खेल रहे हैं उसमें ताकत ज्यादा लगा दे रहे हैं, जिस कारण वो बेस लाइन के बाहर. और कोचेस उनको थोड़े से टिप्स देते हुए, बताते हुए कि किस ढंग से आपको इस मुकाबले में आगे बढ़ने की जरूरत है. क्योंकि अगर ये मुकाबला हार जाएंगे तो SL4 सिंगल्स श्रेणी में इस मुकाबले में हार उन्हें पदक की दौड़ से बाहर कर देगी. दूसरी तरफ पदक के बड़े दावेदार हैं नीलेश बालू, जो कि शीर्ष वरीयता मिली हुई है. बढ़िया खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं. महाराष्ट्र से आते हैं. 11-4. As we begin the second half of the decider game. A little too extra force in that return from Balu, Gaikwad of Maharashtra, and that gives Karthik one more point. 11. Body language strong away. Come on. Karthik holds on to his serve as he earns 6 points. He will like to hold on to his serve as long as possible. And he does. One more point added by Karthik here, making Balu do those mistakes. Be ready. Excellent return on that occasion. 12-7. Take a look at that in the replay. Around the net, beautiful gameplay. But unfortunately, it was just too close for the comfort. 13. Break 7. See, there you go. That soft, tricky, deceptive serve by Balu, making Karthik a little too anxious, and he hits that one in the nets.
விட்டுரு அவ்வளோதான்டா. और इस बार अनफोर्स्ड एरर नीलेश बालू की तरफ से आता हुआ। 2017 में युगांडा पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट से अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया था नीलेश बालू ने, और इस बार अनफोर्स्ड एरर कार्तिक कृष्णन की तरफ से आता हुआ। 2017 के एशियन यूथ पैरा गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट हैं नीलेश, और 2022 में अपने करियर की सर्वोच्च रैंकिंग नंबर 4 पर पहुंचे थे, लेकिन यहां पर एक और गलती कर बैठे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक नीलेश बालू के नाम। युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और एशियन यूथ पैरा गेम्स के सिल्वर मेडलिस्ट, लेकिन यहां पर इस मुकाबले में लगभग अपना दबदबा बनाते हुए नीलेश। Loads of international experience to Balu Gaikwad. One more point in Nilesh Babu Gaikwad's kitty as he sits comfortably in the third and deciding game at 17-9. Beautifully covered, that was great return, and Krishna had no chance there. It was much deep in the court. He had to turn around, and obviously there was no chance of getting it across the net. एक और गलती कार्तिक कृष्णन की तरफ से, और सिर्फ 2 अंक दूर हैं इस मुकाबले को जीतने से, और 1 अंक आता हुआ और मैच पॉइंट पर पहुंच गए हैं शीर्ष वरीयता प्राप्त नीलेश बालू गायकवाड़। Service 10, 20. As Karthik serves, he will defending 11 match points here. कम से कम एक मैच पॉइंट तो बचाने में कामयाब हो जाएंगे कार्तिक कृष्णन। दूसरा मैच पॉइंट भी बचा लिया है, लेकिन आसान नहीं है। 8 मैच पॉइंट अब भी बचे हुए हैं। And there you go, it's all over for Krishna Karthik. He put up a good fight there, but Nilesh Balu Gaikwad from Maharashtra, the top seeded, was too good for him. Holding on to his nerve, having lost the second game, Nilesh Balu Gaikwad, he came back strongly and he is the rightful winner here. नीलेश बालू गायकवाड़ ने इस मुकाबले में 3 गेम तक चला मुकाबला अपने नाम कर लिया है और जगह बना ली है SL4 श्रेणी के क्वार्टर फाइनल में, और अपने लिए पदक की उम्मीदों को बरकरार रखा है। इस कैटेगरी में पदक के बड़े दावेदार हैं नीलेश। दूसरी तरफ बात करें कार्तिक कृष्णन की, तो कार्तिक ने भी बढ़िया प्रदर्शन किया। कुछ एक अवसर पर उन्होंने टफ फाइट दी, दूसरा गेम अपने नाम किया था और ऐसा लग रहा था कि शायद क्या वो एक उलटफेर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और नीलेश ने अपने अनुभव और अपने खेल के ऊंचे स्तर से पूरी तरीके से मात दी है कार्तिक कृष्णन को। कार्तिक ने अपने प्रदर्शन से जो नेक्स्ट ओपोनेंट होंगे नीलेश के, उनको तो एक संदेश जरूर दिया।